Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read the poem from Homecoming, which was written by R. Parthasarathy. He was a modern Indo-Anglian poet, critic, professor, editor, and he was a member of Advisory Board of English of National Academy of Letters. He was a regional editor of Oxford University and co-editor with J.P. Halley of Poetry from Leeds, 1968. His famous poem is Rough Passage, which has three parts: Exile, Trial, and Homecoming, written in 1977, and the poem which was given here is taken from that Rough Passage poem. And the last part, Homecoming, is given here. In this in Rough Passage, we see that poet dwells upon the question of language identity and conflict that arise from being brought up to two cultures. And this poem is a runner-up of the Commonwealth Poetry Prize, written between 1961 and 1975. His three parts: Exile, Trial, and Homecoming. So come to our poem from Homecoming. So it was an extract from the big poem Homecoming. And the 12th section of the poem is prescribed here, and it was written in free verse. No rhyme scheme is here. And this poem, in this poem, poet talks about a man who is incapable of writing a single line of poetry, but he became the critic and criticized the poet's work. So let's begin the poem from Homecoming. So let's begin. I see him now sitting at his desk. The door is open. It is evening. On the lawns the children plays. He went for the wrong gods from the start and marriage made it worse. He hadn't read his Greek poet well. सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पोइट है, एक जो है टीचर को जो है वो दिखा रहा है कि वो जो है अब जो है एक डेस्क पे बैठा हुआ है, दरवाज़ा खुला है, शाम का समय है और बच्चे जो है लॉन में खेल रहे हैं. तो यहाँ पे जो पोइट, अब मैं बताती हूँ कि कैसा जो ये टीचर का डिस्क्रिप्शन क्यों दिया है. वो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए देते हैं कि वो जो टीचर है वो जो है पोएम क्रिएट करने में जो है अनेबल था. उसने कोई पोएम नहीं लिखी, पर वो आगे जाके जो है क्रिटिक बन जाता है. बड़े बड़े पोइट्स की जो पोएम है उनको क्रिटिक उसका पॉइंट ऑफ व्यू देता है, पर वो खुद कभी कोई पोएम की दो लाइन नहीं लिख पाया. और वो जो है उसका सीन दिखा रहे हैं कि वो बैठा है उस टेबल पे, शाम का समय है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं. फिर आगे वो दिखाता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है, ही वेंट फॉर द रॉन्ग गॉड फ्रॉम द स्टार्ट एंड मैरिज मेड इट वर्स. ही हैडंट रीड हिज ग्रीक पोइट वेल. वो बता रहे हैं कि he got married and hence he had to find money in order to support himself and his family. He went to the wrong gods and he had not studied the Greek poet well, which the Greek poet says that who would have taught him that futility of marriage and would have elevated his thought. Then he becomes a teacher. तो इसमें दिखा रहा है कि उसने जो है बाद में जो है उसकी जो है शादी हो जाती है. इसके बाद में जो है अब उसे जो है पैसे कमाने पड़ेंगे कि उसको सपोर्ट करना है, इसलिए वो जो है कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वो जॉब ढूंढता है. तो क्रिटिक बन जाता है आगे जाके. और वो पोइट यहाँ कहते हैं कि उसने अपने ग्रीक पोइट्स को ढंग से नहीं पढ़ा. इसके अंदर वो जो है फ्यूटिलिटी ऑफ मैरिज के बारे में बताते हैं. अगर वो उनको पढ़ता तो वो जो है पहले ही समझ आता है. तो ही वेंट टू रॉन्ग गॉड्स, मतलब उसने जो है बाद में स्टार्ट की, उसकी जो मैरिज हो जाती है. Better to bury a woman than marry her. Now his teacher reviews verses written by others. It is invited to the conferences. और बताते हैं कि अगर वो उनको पढ़ लेता तो उन्हें पता चल जाता कि बेटर टू बरी करना ज़्यादा बेटर है एक वूमन से जो है शादी करने की बजाय. तो ग्रीक पोइट्स ने अपनी पोएम में ये सब लिखा था. तो पोइट कहते हैं कि उसने वो पोएम्स नहीं पढ़ी और अब जो है वो जो है मनी के लिए जो है काम कर रहा है. और वो जो है बड़े बड़े राइटर्स की जो पोएम है उनको क्रिटिसाइज़ करता, क्रिटिकल उनके ऊपर देता है. और वो जो है अब टीचर बन चुका है और रिव्यू करता है दूसरे पोइट के वर्सेस उस पोएम को. और जो है वो जो है अब कॉन्फ्रेंसेस के लिए इनवाइट किया जाता है. एंड ही अटेंड दोज कॉन्फ्रेंसेस.
How long it had taken him to learn he had no talent at all, although words came easy. One can be articulate about nothing, or was it simply his God had left him? Now, poet is saying that he attended conferences, and it has taken. The poet is asking that how long it will take to learn this all things, but he had no talent, although word came easily to him, and he can express अबाउट नथिंग. द पोइट यहाँ बता रही है कि हम जो है नथिंग के ऊपर भी अपने जो है थॉट्स जो है लिख सकते हैं. वर्ड्स जो है इजीली हमें मिल जाते हैं, तो हम अब आर्टिकुलेट कर सकते हैं किसी नथिंग के ऊपर भी. और वाज इट सिंपली हिज गॉड हैड लेफ्ट हिम. Peddling his bicycle glasses, he asked what it like to be a poet. I say to myself, the son of which. सो यहाँ पे जो है पोइट नेक्स्ट बाद में क्वेश्चन करते हैं कि पोइट कैसा हो सकता है. पोइट कैसा हो सकता है पेडलिंग हिज बाइसिकल ग्लासेस, वो ये क्वेश्चन पूछता है और फिर वो खुद को जवाब देते हैं कि वो कौन होता है, अ सन ऑफ बिच. Fattens himself on the flesh of dead poets, lines his pocket with their blood from his fingertip, ooze ink and paper. यहाँ पे बता रहे क्रिटिक जो है fattens himself on the flesh of dead poets, वो खुद को फ्लैटन करता है डेड पोइट्स की फ्लैश पे, मतलब उनकी पोएम पे क्रिटिसिज्म लिख के जो है उसके ऊपर जो है वो जो है फैटन मतलब पलता है. उसकी जो पॉकेट्स है वो उन ओल्ड पोएट की पोएम के ब्लड से जो है लगी हुई है, और उनके फिंगर टिप्स जो है उस इंक में डूबे हुए हैं और उस पेपर पे लगे हुए हैं. तो पोइट यहाँ पे जो है उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि वो क्रिटिसिज्म ही राइट्स क्रिटिसिज्म इन अ लार्ज मेजर ऑफ लिटरेचर, बट ही डिड नॉट राइट द करेक्ट थिंग. ही टेक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी मटेरियल, एंड द पोइट अब्यूजेज हिम बाय कॉलिंग अ सन ऑफ विच पोइट. As he squats on the dung heap of old text and obscure contemporaries, his eyes peel off. Where would his immense be but for the poets who splashed about is the Hellespont and or burned in the Java Sea. और यहाँ पे जो पोइट है वो बता रहे हैं, यहाँ पे पोइट जो है बहुत मतलब ऐसे उसको बता रहे हैं कि वो जो है उन पोइट की पोएम्स, जो पुराने पोइट्स हैं उनकी पोएम्स के ऊपर जो है उसका जो है चलता है काम. उनको क्रिटिसाइज़ करके जो है वो जो लिखते हैं उसके ऊपर उसका जो है काम अभी चल रहा है. एज ही स्क्वेड्स ऑन द डंग हीप ऑफ ओल्ड टेक्स्ट, वो जो है ऑब्सक्योर, वो जो पुराने टेक्स्ट है उसके ऊपर जो उसकी लाइफ है वो चल रही है. और पोइट कहते हैं कि अगर ये जो पोएम्स नहीं होती तो ये कहाँ से पैसे कमाते, ये क्रिटिक जो है ये पैसे कहाँ से कमाते. अगर ये पुराने पोइट्स की जो पोएम है या फिर जो पोइट पोएम लिख रहे हैं वो नहीं होती तो वो कैसे जो है उनका गुजारा होता. और लास्ट में पोइट जो है सरकस्टली जो है कॉल्स हिम हिज इमेंस मीन्स यहाँ पे जो है क्रिटिक के बारे में बताया गया है. एंड वंडर्स वेयर ही वुड बी बीन एक्सेप्ट फॉर द पोइट्स ऑफ द क्लासिकल एंड मॉडर्न एज. वो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ये क्लासिकल और मॉडर्न एज के जो पोइट है अगर वो नहीं होते तो ये क्रिटिक कहाँ जाते, कैसे रहते. यहाँ पे लास्ट में जो एग्जांपल दिया है हेलेस्पोंट और जावा सी, तो ये उनके लिए है क्लासिक पोइट और मॉडर्न पोइट के बारे में. सो यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है. इस पूरी पोएम में पोइट ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है उन क्रिटिक्स को जो कि जो पोइट की जो पोएम है उसे समझते नहीं हैं अच्छे से, और उनके ऊपर जो है क्रिटिक कमेंट करते रहते हैं और वो सेकेंडरी मटेरियल की हेल्प लेके ये करते हैं. इसके अंदर एक टीचर का एग्जांपल दिया है कैसे वो जो है रिव्यूज़ लिखता है और कैसे वो कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, और वो जो है जो भी क्रिटिक जो भी लिखते हैं, जो क्रिटिसिज्म वो लिखते हैं वो लार्ज मेजर ऑफ लिटरेचर पे लिखते हैं पर सेकेंडरी मटेरियल के बेसिस पे लिखते हैं. सो ये जो पोएम है उन क्रिटिक के ऊपर जो पोइट ने जो है वो लिखी है. पोइट ये बताते हैं क्रिटिक डू नॉट अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पोएम बट सिट इन
Critics do not understand the poem but sit in judgment on the poetry of other poets. They try to find fault with their poetry. They do not blame themselves for their own foolishness or lack of understanding. सो पोइट यहाँ पे यही बताते हैं, क्रिटिक जो है उन पोइट की पोएम को समझते नहीं है और बैठ जाते हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए, और वो जो है अपनी फुलिशनेस या अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वो जो है दोष नहीं देते, वो उस पोइट की पोइट्री को दोष देते हैं. तो ये जो है क्रिटिक के बारे में, तो क्रिटिक उन्हें समझते नहीं है उस पोएम को. सो इस पोएम में जो है पोइट ने जो है पोइट वर्सेस क्रिटिक दिखाया गया है, और इसके अंदर जो पोइट हैं आठ पार्थसारथी, वो जो है भर्तृहरि एक पोइट थे पहले के संस्कृत पोइट, उनकी जो है ओपिनियन को भी वॉइस करता है. उन्होंने भी बहुत पहले ही कहा था कि पोइट और क्रिटिक के बारे में. GB शो ने भी कुछ कहा था कि ही हु कैन डज, ही हु कैन नॉट टीच. और जैसे हम एक प्रोवर्ब भी देख सकते हैं, ए बैड पोइट बिकेम ए गुड क्रिटिक, बट जो यहाँ पे जो इसके अंदर जो प्रोवर्ब ये जो है एक थी कि एक बैड पोइट जो है आगे जाके गुड क्रिटिक बन जाता है. अब मान लो उसे पोएम नहीं लिखी जा रही है तो वो जाके दूसरों की पोएम को क्रिटिसाइज़ करेगा और एक अच्छा क्रिटिक बन जाएगा. तो इस पोएम में उसको ही क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जिस फेलो की इसके अंदर बात हो रही है वो ना तो अच्छा पोइट बन सका ना अच्छा क्रिटिक बन सका. सो ये थी पोएम फ्रॉम होम कमिंग, जो रफ पैसेज उनकी जो एक बिग पोएम है उससे लिया गया है. इसके अंदर 3 पार्ट है, एग्ज़ाइल, ट्रायल एंड होम कमिंग. सो एग्ज़ाइल में जो है अपोज़ किया गया है कल्चर, यूरोप के कल्चर को, और कॉन्सिक्वेंसेस जो ब्रिटिश रूल के हैं इंडिया पर उसको जो है एग्ज़ामिन किया गया है. और ये स्पेशली इसके अंदर जो लॉस ऑफ आइडेंटिटी है ऑफ हिज ओन कल्चर उसके बारे में बताया गया है. ट्रायल में हम देखेंगे तो इसके अंदर लव को एक लव की रियलिटी को सेलिब्रेट किया गया है. और होम कमिंग जो है एक्सप्लोर करती है फिनोमेना ऑफ रिटर्निंग टू वंस होम. होम कमिंग एक बहुत बड़ी पोएम है. इसके अंदर जो पोइट बहुत बताते हैं कि वो कैसे वहाँ से आते हैं, तो वो खुद के कल्चर की जो भी लैंग्वेज है वो कैसे उन्हें आनी है. तो इसके वो बहुत बड़ी पोएम, हमें तो बहुत छोटा सेक्शन 12 सेक्शन दिया है ये, जिसमें वो एक टीचर क्रिटिक की बात करते हैं. तो ये फ्रॉम होम कमिंग ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी बड़ी पोएम रफ पैसेज का. उसके अंदर भी जो होम कमिंग है उसका 12 सेक्शन दिया गया है इसके अंदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड हियर वी एंड दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.